I think some of the students are also facing the network issue problem. Yes, children, in the phylum Hemichordates, ठीक है, we generally have the aquatic worms, जिनको हम aquatic worms के नेम से जानते हैं. They all come under the phylum Hemichordates. तो Hemichordates earlier it was a subphylum. ठीक है, पहले इसको सब फाइलम का दर्जा दिया गया था. इन फाइलम कॉर्डेटा में yes, Patel. So what I am saying that the Hemichordates, they were earlier considered as a subphylum under the phylum Chordate. ठीक है, Chordates के अंदर हमने इसको जो है subphylum की फॉर्म में कंसीडर किया था, but now they have a separate phylum under non-chordates and they are now known as Hemichordates. ठीक है, why they are called as phylum Hemichordates? So because of the presence of notochord. ठीक है, the notochord is not present in them throughout their life cycle. पूरे उनके लाइफ स्पैन के दौरान इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है. The notochord is generally visible in half of their body or during the embryonic phases. ठीक है, and the rest of the body is not having the notochord. So that's why they are known as the hemichordates. And what is another very important thing, that all of these hemichordates, they are mostly aquatic animals, marine animals. ठीक है, ये ओशंस में हमें मिलते हैं. These animals are generally found in oceans and they are popularly known as aquatic worms. इनको aquatic worms कहते हैं. All the advanced features they are found in these phylum. इस phylum में सारे advanced features present होते हैं. That means they have organ system level of organization. They are triploblastic animals. They are coelomate animals. Okay, बेटे, and body की जो symmetry है, it is the bilateral type of symmetry. See the diagram that is visible on your screen. ठीक है, the animal which is now I am showing you is Blanoglossus, which is the representative member of the phylum Hemichordates. So see the body of the animal. Body of the animal is just like a worm. ठीक है, see the anterior portion of the body where this tip-like structure is present. तो एंटीरियर पोर्शन जो है बॉडी का, उसमें यहाँ पर इसकी एपेक्स पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द प्रोबेसिस ग्लैंड. ठीक है, तो इसका जो प्रोबेसिस ग्लैंड है, इट इज आल्सो एक्ट एज इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है. तो दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्रोबेसिस ग्लैंड. उसके बाद देखिए, दिस इज द नेक लाइक स्ट्रक्चर. दिस रीजन इज नोन एज द कॉलर रीजन. एंड उसके बाद जो है आपको जो है स्पाइरल फॉर्म में जो वर्म की बॉडी नजर आ रही है एंड जो उसके पोस्टीरियर पोर्शन को फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज द ट्रंक रीजन ऑफ द वर्म. तो वर्म की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंटीरियर में प्रोबेसिस ग्लैंड इज देयर, देन इन द मिडल, ओके, व्हाट इज प्रेजेंट, कॉलर रीजन इज प्रेजेंट और नेक रीजन इज प्रेजेंट एंड द लॉन्ग ट्रंक लाइक रीजन इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर पार्ट. ओके बेटे, फिर वो कहते हैं कि if you see the internal anatomy of the worm, then gill slits are present. तो gill slits जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. The gills are embedded in the body of the animal. और उसके ऊपर जो है आपको slits like structure नजर आती है. फिर देखिए, अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, because it is a worm, so it is a open type of circulatory system, means the blood is present inside. Okay, but all the other cells, they are directly in contact with that cavity, और वहीं से जो है they just take up, ठीक है, they take up the blood for their metabolic activities. And what about the respiration? तो respiration जो है, because it is an aquatic animal, aquatic animals है, तो respiration it generally takes place with the help of gills. ठीक है, गिल्स के हेल्प से रेस्पिरेशन होता है. प्रोबेसिस ग्लैंड इट आल्सो एक्ट एज, प्रोबेसिस ग्लैंड जो है वो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है. और उसके अलावा देखिए, सेक्सेस की अगर हम बात करें, तो देयर आर 2 सेपरेट सेक्सेस, मेल एंड फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं. ठीक है, और डेवलपमेंट जो है वो इंटरैक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है. मींस कि व्हेन द
you can say when you see their larval stages, and their larval stages are very much different from the adult stages. ठीक है, तो इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो इनकी एडल्ट स्टेजेस जो हैं उनसे डिफरेंट होती है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद देखो बेटे फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बाद देयर इज आई हैव रिटन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इट। नेटवर्क इशू इज देयर, सो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, पर आपने जाना नहीं है, मैं फिर से आ जाऊंगी। ओके बेटा, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग कि आई हैव रिटन ऑल द फीचर्स ऑफ द हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमिकॉर्डेट्स के जो फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, ठीक है। अगेन आई एम शोइंग शेयरिंग माय स्क्रीन, सो दीस आर द फीचर्स, सी, ठीक है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, बॉडी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोविसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन, वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंटीरियर पोर्शन जो है डॉर्सल नर्व कॉर्ड का वो कैसा है, हॉलो है। फैरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, गिल स्लिट्स होते हैं जहाँ पे गिल्स प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा जो है ये एनिमल्स जो है, ठीक है, मोस्टली जो है एक्वेटिक होने की वजह से गिल से ही रेस्पिरेशन करेंगे, और प्रोविसिस ग्लैंड का एक ही फंक्शन है कि वो एक्सक्रीशन करता है। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दी थी कि एनिमल जो है इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, दे ले देयर एग्स, ठीक है, एट द सेफ प्लेसेस, एंड वहां पे एग्स जो है उनमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद एग्स का डेवलपमेंट होता है, और सेफ प्लेसेस पे ये अपने जो एग्स हैं उनको ये रखते हैं। So now after hemichordates we have the main phylum, that is phylum Chordata. So you are very much familiar with phylum Chordata. Before I am proceeding with this, there are certain characteristic features that are unique to phylum Chordata. Okay बेटा, number 1 presence of notochord, इसमें notochord present होती है। Okay, second one is the dorsal hollow nerve cord is there, ठीक है। तो डॉर्सल रीजन जो है बॉडी का वहां पे हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरेंक्स जो है लाइक स्ट्रक्चर्स जो है प्रीलिमिनरी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो अगर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा प्रिमिटिव टाइप के हैं तो रेस्पिरेशन गिल से होगा, अदरवाइज गिल्स जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो गए हुए हैं एडवांस्ड फॉर्म्स में, और उन्होंने लंग्स का रूप ले लिया है। ओके बेटे, सिमेट्री के बारे में क्या ख्याल है? तो बाइलेटरल सिमेट्री इज देयर, एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, मींस ऑल द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर प्रेजेंट। देन सिलोमेट एनिमल्स दे आर, कॉर्डेट्स हमेशा सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए देयर इज वन टेबल गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 55, कंपैरिजन दिया हुआ है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो देखिए कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। सेकंड इज कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल रीजन में होता है बॉडी के, फॉलो होता है एंड सिंगल होता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आ जाती है, वन इज द ब्रेन एंड अदर इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसमें से ठीक है, जिसमें प्रीलिमिनरी फॉर्म्स में नोटोकॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड बोला गया है, बाद में वहां पर जो है स्पाइन डेवलप हो जाती है। उसके बाद देखिए अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल रीजन में होता है बॉडी के, इट इज नॉट हॉलो, इट इज फेल्ड, ये सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक है। फेरेंक्स की अगर हम बात करें तो फेरेंक्स यहाँ पे परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड मींस पोर्स होते हैं उसमें और गिल स्लिट्स के। और यहाँ पर अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। ओके बेटे, हार्ट की बात करें तो कॉर्डेट्स में याद रखिए हार्ट इज हमेशा वेंट्रल, ठीक है, ह्यूमंस में भी हार्ट वेंट्रल रीजन पर है। अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल रीजन ऑफ द बॉडी। ओके बेटे, अगर वो कहता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट्स, तो इन कॉर्डेट्स पोस्ट एनल टेल इज देयर, ठीक है। आप सभी सोच होंगे कि ह्यूमंस में तो कोई टेल्स नहीं है,
But if you see the evolution of human beings, so you know that the apes are generally their ancestors. Okay, you have studied in history also or in बायोलॉजी ऑल्सो कि इनके एंसेस्टर्स जो है वो एप्स रहे हैं. एप्स तो थे वो टेल वाले एनिमल्स हुआ करते थे. तो अभी भी हमारी जो बैक है उसमें देयर इज अ प्लेस जहाँ पे कि टेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक टाइम पे प्रेजेंट होते थे, बट नाउ दे later on they now removed. Okay, another thing is phylum Chordata is further divided into 3 subphylums. ठीक है बेटे, on the basis of the notochord which is present. ठीक है, कितनी notochord उनमें present है उसके basis पे we have divided the phylum Chordate into 3 subphylum. Number 1 is subphylum Urochordate. So subphylum Urochordate is also known as ट्यूनिकेटा. ठीक है, इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं यूरोकॉर्डेट्स को. और याद रखिए कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं ना उनमें जो नोटोकॉर्ड है इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज. ठीक है, सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. उसके बाद देखिए सेकंड जो फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम है इट इज नोन एज सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. तो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटे, तो देखो इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, व्हाइल इन सिफेलोकॉर्डेट हेड से लेके टेल रीजन तक एंड थ्रू आउट देयर लाइफ नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट. ठीक है, नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट होती है. तो सिफेलोकॉर्डेट्स में पूरी लाइफ स्पैन के दौरान नोटोकॉर्ड रहेगी हेड से टेल रीजन में, पर जो यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स है उसमें सिर्फ लार्वल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड इज देयर. एंड थर्ड वन इज द vertebrata subphylum vertebrata. So subphylum vertebrata actually has the vertebral column. Initially the notochord is present which is replaced by the spinal cord associated with the vertebral column. The presence of vertebral column is the characteristic feature of subphylum vertebrata. तो बाद में इसमें वो कहते हैं कि जो नोटोकॉर्ड होती है ना उसको रिप्लेस करके कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम उसको रिप्लेस कर देता है. तो there is a general saying that all vertebrates are chordates. सारे ही vertebrates chordates होती हैं, but all chordates are not vertebrates. So there are some features that are common to the vertebrates. Okay बेटा, तो vertebrates जो है उसमें सबसे important feature है कि vertebrates का जो heart होता है ना muscular होता है and it is always present at the ventral side of the body. Body की ventral side में heart present होता है. Okay, second thing is कि हार्ट जो है उसमें कितने भी चैम्बर हो सकते हैं अलग. यस, ठीक है, किडनीज आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. एक्सक्रीशन वर्ड इज नोन टू एवरीबॉडी, बट व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? सो ऑस्मोरेगुलेशन हियर इज रिलेटेड विद ऑस्मोरेगुलेशन का यहाँ पर मतलब है वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है बॉडी में. ठीक है बेटे, बॉडी में वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. ओके चिल्ड्रन, अनदर थिंग इज पेयर्ड अपेंडेजेस. तो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं. अगर वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स है देन दीस पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है, ये जो पेयर्ड अपेंडेजेस है वो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर जो है क्या हो सकती हैं, फिन्स हो सकती हैं. बट इफ दे आर द टेरेस्ट्रियल फॉर्म देन इंस्टेड ऑफ फिन्स की जगह पे उनमें लिम्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे ह्यूमंस में 2 लिम्स प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स. ओके बेटा, ओके बेटा, आई एम ऑन पेज नंबर 56. पेज नंबर 56 पर है हम एंड देयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन दैट इज रिलेटेड विद क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, उसको देखेंगे आप. तो उसमें देखिए हमें बताया हुआ है कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड. सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है. ठीक है, नंबर 1 इज 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है सब फाइलम वर्टिब्रेटा को. वन इज नोन एज एग्नेट्रा
and another that is known as gnathostomatas. ठीक है, तो agnathas and gnathostomatas. Here I have written the characteristic feature of chordates, ये आप बाद में पढ़ेंगे. तो देखो फ्लो चार्ट I have not added in the presentation, that you please see from this page number 56. तो उसको जरा ध्यान से देखें. तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स. एग्नेथा जो है दे आर द जॉलेस वर्टिब्रेट्स. इनको जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहते हैं जिनमें जॉज नहीं होते. ठीक है. सेकंड डिवीजन इज गनेथोस्टोमेटा. तो गनेथोस्टोमेटा जो है उसकी एक सुपर क्लास है. ये मोस्टली ऐसे एनिमल्स होते हैं व्हिच हैव जॉज, जिनके अंदर जॉज होते हैं. तो इसके देखिए टू सुपर क्लासेस है, पाइसेस, ठीक है, क्लास पाइसेस एंड क्लास टेट्रोपोडा. ये गनेथोस्टोमेटा के बारे में बता रही हूँ मैं आपको. अगर मैं एग्नेथा के बारे में बताऊंगी तो उसके सिर्फ एक ही क्लास है एंड दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है. तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा इज द क्लास व्हिच इज ऑफ द डिवीजन एग्नेथा. यस बेटे. उसके बाद देखो पाइसेस जो है उसको आगे टू क्लासेस उसकी रखी गई है. नंबर वन इज क्लास कॉन्ड्रिचथाइस. ठीक है. फर्स्ट इज क्लास कॉन्ड्रिचथाइस. कॉन्ड्रिचथाइस में ऐसी फिशेस आ जाती हैं जो कार्टिलेज से जिनका एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है. those fishes whose exoskeleton is made up of cartilage they comes under class chondrichthyes. And second is ostrich-thighs. Ostrich-thighs में ऐसी फिशेस आती हैं जिनका एक्सोस्केलेटन बोनी होता है, बोन से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है. तो टेट्रोपोडा जो है उसकी 4 क्लासेस हैं. क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एबीज एंड क्लास मैमेलिया. ठीक बेटे. क्लास एम्फीबिया में एम्फीबियंस आ जाएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे रेप्टिलिया में, देन क्लास एबीज में बर्ड्स आ जाएंगे, और मैमल्स में हम सारे ह्यूमंस भी मैमल्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग विद द क्लास हेमिकॉर्डेट्स. तो हेमिकॉर्डेट्स जो हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. Yes, children, see the hemichordates. ओके बेटे. क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बता रही हूँ, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. ठीक है. तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है इनके कैसे होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं. ठीक है. और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस के ऊपर. दे आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस. wait, I am showing you the picture of the animal. Such type of animals they are. इनको jawless vertebrates कहते हैं. and the diagram that is visible on your screen is of Petromyzon. ठीक है. जिसको लैम्प्रे भी कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस. ज्यादातर एनिमल फिशेस की बॉडी के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट सकिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फिश. ठीक है. इलॉन्गेटेड बॉडी होती है इनकी, स्मूथ बॉडी होती है, और बॉडी में स्केल्स आर नॉट देयर. बॉडी जो है बिल्कुल स्मूथ होगी एंड द स्केल्स दे आर नॉट विजिबल ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल. फिर देखिए इलॉन्गेटेड बॉडी जो है इसमें 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स के होते हैं. दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. 6 to 15 गिल स्लिट्स. Yes, children, these cyclostomes they are actually the ectoparasites. तो cyclostomes जो है वो ectoparasites है, इसीलिए उनके जो सकिंग ऑर्गन्स है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप है. ठीक है. और इनके जो जॉज होते हैं इनमें जॉज नहीं होते. तो सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है पर उसमें जॉज प्रेजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द जॉलेस वर्टिब्रेट्स. बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपको बताया. पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट. ठीक है. फिन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके अंदर जो अच्छे से डेवलप होता है, क्रेनियम बोन भी प्रेजेंट होती है. वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है. ठीक है. सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन है व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडवांस एनिमल्स. तो ब्लड जो है इट मोस्टली फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स. ठीक है बेटे. साइक्लोस्टोम्स मोस्टली लिव्स इन ओशंस. ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, but during their swapping period when they have to lay eggs they go to fresh water. ठीक है. जब इन्होंने एग्स देने होते हैं उस समय ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं. and when the lampreys, the baby lampreys, they comes out from the egg
then they swim and again comes in the oceans. तो फिर ये swim करते हैं और फिर से oceans के अंदर आ जाती हैं. But after giving birth to lampreys, ठीक है, जब एक मदर लैम्प्रे जो है वो एग्स दे देती है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. ओके, तो दिस इज द स्पेशल केस. तो यहाँ पे देखिए पेट्रोमाइजन इज द एग्जांपल व्हिच इज कॉमनली नोन एज लैम्प्रे एंड अनदर इज मिक्सिन. मिक्सिन इज नोन एज हैगफिश. तो मिक्सिन जो है उसको हैगफिश कहते हैं. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, साइक्लोस्टोमेटा इज अ क्लास दैट कम्स अंडर डिवीजन एग्नेथा. Division Agnatha generally have jawless vertebrates. So most of the members of the Cyclostomata class, they are ectoparasite on fishes. Fishes के साथ attach कर लेंगे sucking blood from their body. No scales are present over their body. The body is elongated. ठीक है, 16 to 15 pair of gill slits are there for respiration. Fins are present, and with the help of these fins, they swim in the water, in the ocean water. और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एनिमल्स जो इनमें सकिंग ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं सो दैट दे कैन सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फिश. एंड हियर द सर्कुलर माउथ इज देयर व्हिच इज अ फनल लाइक माउथ एंड जॉज आर नॉट देयर इन दिस सर्कुलर माउथ. ओनली द सकिंग ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड. ठीक बेटे, सर्कुलेशन कैसी है? तो सर्कुलेशन इज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, मींस ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स and reaches the different parts of the animal body. Then another very important thing is कि when they have to lay eggs, ठीक है, जब इन्होंने eggs देने हैं then they must have to go to fresh water for laying their eggs. But when the baby lampreys they comes out from these eggs, then these lampreys they immediately start swimming and they comes in the oceans and spend their whole life in the oceans. But the mother lamprey after giving eggs, ठीक है, मदर लैम्प्रे एग्स देने के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है. दैट्स व्हाई देयर पॉपुलेशन इज नॉट मोर. अगर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती तो फिशेस जो है उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाना था, क्योंकि मोस्टली फिशेस जो है ये उनकी बॉडी के साथ तब तक अटैच रहते हैं जब तक कि फिश की डेथ नहीं हो जाती. तो टू एग्जांपल्स आर देयर. वन इज पेट्रोमाइजन, ओके, व्हिच इज कॉमनली नोन एज लैम्प्रे, एंड अनदर इज नोन एज मिक्सिन. मिक्सिन इज अ हैगफिश. ओके चिल्ड्रन, so I am proceeding with the next one, that is the class Chondrichthyes. तो मैंने आपको बताया था कि another division is Ganathostomata, which are the animals which have jaws in their mouth, and there are two super classes. इसके दो super classes हैं. class Pisces में two classes आ जाती हैं. one is Chondrichthyes and other is Ostrich-Thies. और दूसरी class जो है वो Tetrapoda है, उसमें 3 classes आ जाती हैं. ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड बर्ड्स. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सुपर क्लास पाइसेस, और उसके अंदर फर्स्ट हमारी जो क्लास है दैट क्लास इज नोन एज क्लास Chondrichthyes. तो देखो क्लास Chondrichthyes जो है उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मोस्टली इसके अंदर कार्टिलेज फिशेज आ जाती हैं. तो ज्यादातर मेंबर्स जो हैं उसमें फिशेज हैं, एक्वेटिक फिशेज आर देयर, बट देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है. तो उसके बाद देखो फिश की जो बॉडी है उसमें वेयर इट्स माउथ इज प्रेजेंट, तो माउथ इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल रीजन ऑफ द बॉडी. ठीक है, वैसे फिश का माउथ आगे की तरफ टर्मिनल होता है, पर इसका माउथ जो है वो वेंट्रल रीजन में है. नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रूआउट देयर लाइफ टाइम. अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. गिल स्लिट्स आर सेपरेट. ठीक है, एक गिल स्लिट के अंदर एक गिल होता है, और इस तरह के काफी सारे गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. बट द गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी कवर लाइक ओपर्कुलम. ठीक है, गिल्स में कोई भी कवर जो है वो गिल्स को कवर करके नहीं रखता, यानी ओपर्कुलम इसमें एब्सेंट होता है. फिर देखो बॉडी जो है उसकी अगर हम बात करें तो स्किन इज वेरी टफ. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. स्किन बहुत ज्यादा टफ एंड हार्ड होती है, कार्टिलेज से बनी होती है. ठीक है, स्केल्स आर प्रेजेंट. स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ओवर द स्किन which are known as palacoid scales. If you open their mouth and see the teeth are modified into palacoid scale. इनके जो teeth है ना वो modify होकर palacoid scales बन गए. Here in these fishes the air bladder is not present. इन fishes के अंदर air bladder present नहीं होता, so that's why these fishes must have to be swim continuously. इन fishes को continuously swim करना पड़ता है.
ओके बेटा, दे हैव पावरफुल जॉस, इनके जॉस पावरफुल होते हैं, सो दे आर द प्रेडेटर्स. व्हेन दे कैप्चर देयर प्रे, द प्रे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम देयर जॉस. ठीक है, इनके जॉस में से प्रे एस्केप नहीं कर पाता. अनदर थिंग इज कि इफ वी सी देयर हार्ट, तो यहाँ पे 2 chamber heart is present, which is the characteristic feature of phylum, which is the characteristic feature of class 5-6. तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है हार्ट के अंदर. ठीक है, सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ फिशेस आर देयर. तो देखो यहाँ पे नेम दिया गया टॉर्पिडो का. टॉर्पिडो इज अ फिश जिसमें कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये अपने प्रे के कांटेक्ट में आती है तो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज ऑफ दिस देयर प्रे गेट डेड. ठीक है, देयर इज वन अनदर फिश दैट इज नोन एज ट्राइगॉन. तो ट्राइगॉन फिश जो है इसको स्टिंग रे भी कहते हैं. ठीक है, तो जैसे ही अपने प्रे के कांटेक्ट में आती है, इट इंट्रोड्यूस स्टिंग इन इट्स प्रे, एंड एज अ रिजल्ट द प्रे गेट्स डाइड. एंड अनदर थिंग इज कि ऑल ऑफ दीज chondrichthyes members, they are the cold blooded animals. They cannot survive if they are removed from water. ठीक है, बॉडी टेम्परेचर जो है उसको ये रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. Another thing is sexes are separate, so male and female fishes they are different. Then how can you identify कि this fish is a male fish? तो pelvic fins जो होते हैं, ठीक है, the pelvic fins which are special type of fins, they bear claspers. ठीक है, that are related with male. तो pelvic fins जो हैं वो claspers को bear करते हैं, जो सिर्फ male fishes के अंदर जो है वो नजर आते हैं. फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. तो मेल एंड फीमेल फिशेस they attaches their body, male introduce sperms in the body of the female fish, and in this way the fertilization it takes place inside the body of the female. ठीक है, तो most of the members are baby parents. ओके बेटे, यस बेटे, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हमें एग्जांपल देनी है chondrichthyes के, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल. कॉमन एग्जांपल इज स्कॉलियोडन. ठीक है, स्कॉलियोडन जिसको कि हम डॉग फिश कहते हैं. इट्स स्पेसिमेन इज देयर इन आवर बायोलॉजी लैब, so whenever you come to school you see that specimen. डॉग फिश में जो माउथ होता है इट इज वेंट्रल. ठीक है, सॉ फिश इज देयर. सॉ फिश जिसको कि हम प्रेस्टिस कहते हैं, सॉ लाइक बॉडी होती है इसकी. देन वी हैव कार्चारोडन दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क, और इसके अलावा इसमें स्टिंगरे आ जाती है जिसको हम ट्राइगॉन कहते हैं. टॉर्पिडो आ जाती है जिसको आप इलेक्ट्रिक रे कहते हैं. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीस फिशेस दे कम अंडर chondrichthyes. तो एक बार फिर से सुनेंगे. chondrichthyes are those fishes which whose exoskeleton is made up of cartilage. Mouth is ventral, mouth इनका ventral होता है. देन फिशेस जो हैं उनकी बॉडी में स्केल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको पैलोफाइड स्केल्स कहते हैं. फिश की जो बॉडी है वो कार्टिलेज से बनी हुई है, इट इज हार्ड एंड टफ. ठीक है, तो इफ यू ओपन द माउथ ऑफ द फिश यू सी दैट इज मॉडिफाइड इनटू पैलोफाइड स्केल्स. और उसके बाद वो कहते हैं कि फिश के जॉस बहुत ही पावरफुल होते हैं. दे कैन इजीली कैच देयर प्रे एंड डू नॉट अलाउ टू लीव द प्रे. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पावरफुल जॉस. एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, so that the fish has to swim continuously to face the water currents. तो हार्ट कैसा है? 2 chambered heart है, 1 auricle 1 ventricle is there. So many examples, specific examples are there. तो टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं जिसको, ट्राइगॉन जिसको स्टिंग रे बोलते हैं. देन एनिमल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट. मेल्स हैव special type of claspers present over their pelvic fins, by which you can easily identify the male fishes. And fertilization internal होती है, और fishes viviparous हैं. ठीक है, eggs नहीं देती हैं. eggs की जगह पे क्या देती हैं? baby fishes को birth देती हैं. Okay बेटा, तो this is all about the class chondrichthyes. So another class is class osteichthyes. Class osteichthyes are normal bony fishes which you generally see in the fish market. तो इसमें सारी फ्रेश वाटर फिशेज आ जाती हैं, such as लेबुआ रोहिता. ठीक है, जिसे हम रोहू फिश कहते हैं. देन मगूर फिश आ जाती है इसके अंदर.
जिसको हम क्लैरियस कहते हैं, कातला फिशेज आ जाती हैं। तो जो भी फिश हम ईटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, दे कम्स अंडर दिस क्लास ऑस्टेस्थाइस। ठीक है, एक्वेरियम अगर हमारे घर में है तो उसमें छोटी जो कलरफुल फिशेज होती हैं जिन्हें बीटा फिशेज कहते हैं, दे आल्सो आर टाइप ऑफ दीज फिशेज, बोने फिशेज। तो क्लास ऑस्टेस्थाइस जो है उसमें कुछ मेंबर्स मैरीन है, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर द फ्रेश वाटर मेंबर्स and they are generally found in lakes and rivers. Okay बेटे, as the name itself indicate, their skeleton is made up of bones. Body कैसी है? Streamlined body है, यानी tapering है at anterior and posterior end. Mouth is at terminal position. fish का mouth बिल्कुल आगे की तरफ होता है, नीचे नहीं होता. It is at the terminal position. 4 pair of gills are present, which are covered by gill slits or operculum. ठीक है, 4 pairs यहाँ पे गिल्स से प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक गिल कवर्स के द्वारा ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड होते हैं। देखो कार्टिलेज फिशेस